Hello students. So in the previous class we have discussed about the hemoglobin, the cell present in the blood. Okay. So now today we are going to learn about more number of cells present in the blood because there are many three to four types of cells present in the blood. So we learn about them also. We have learned about one, that is what? Red blood cells. Okay. So red blood cell is present in the blood. Okay. इट हैव हीमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ रेड पिगमेंट, जिसमें क्या होता है? रेड पिगमेंट होता है, और इसी की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है. एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द हीमोग्लोबिन? इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, सो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक. ठीक है. दूसरे टाइप का जो सेल्स है दैट इज अवर वाइट ब्लड सेल्स. सो व्हाट आर वाइट ब्लड सेल्स? These cells are also present in blood and are called white blood cells, WBC. Okay. Now, what is the work of them? They fight against the germs which enter our body. Remember, हमारी बॉडी में जो germs enter करते हैं उनसे fight करना किसका काम है? White blood cells का. तो we have studied about two types of cells, that is red blood cells and white blood cells. Okay, so red blood cells का काम क्या है? To provide the oxygen to the different parts of the body or different cells of the body. And what is the work of the white blood cell? To fight against the germs which enters our body. Okay, now you have seen when you get a cut, जब आपको कहीं पर कट लग जाता है, you see that the blood flow from there, है ना, बट आफ्टर सम टाइम यू सी द वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की और ब्लड आना रुक जाता है, इजंट इट? तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ब्लड कौन रोकता है, कैसे रुक जाता है? अगर ब्लड फ्लूइड है और वहाँ पर जैसे कि इफ आई से अगर कोई आपके पास बाल्टी है और उसमें एक क्या हो जाए, उसमें एक होल हो जाए, तो क्या उसमें से जब तक पानी खत्म नहीं हो जाएगा पानी रुकना बंद हो जाएगा? पानी आना बंद हो जाएगा क्या? नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि वहाँ पर जब तक फ्लूइड प्रेजेंट है वो उससे फ्लो होगा. बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है. जो कट हुआ है हमें, हम बोल सकते हैं कि वो क्या हुआ है बेटा? एक होल ही तो हुआ है, isn't it? तो वहाँ से ब्लड आते रहना चाहिए था, बट आफ्टर सम टाइम वी सी दैट कि वो ब्लड आना रुक जाता है और वहाँ पर ब्लड की क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है. ओके, सो क्वेश्चन अराइजेस, हु डज दिस क्लॉटिंग? So remember, there are another type of cells present in the blood. Those are called platelets. क्या बोलते हैं इनको? Platelets. Okay, and which are responsible for the blood clotting. Blood clotting के लिए कौन responsible है? Platelets, the third type of cell present in our blood. So तीन टाइप की cells हम लोग पढ़ चुके हैं जो blood में present है. That is red blood cells, which consist of hemoglobin and which is red in color. Okay. Now, second type of cell is white blood cells, which fights against the germs. Third type of cell is platelets, which helps in blood clotting. Okay, so now we will discuss about the blood vessels. Because why we have to discuss about the blood vessels? जो blood flow करता है, it flows through blood vessels. कहाँ से flow करता है? Blood vessels से flow करता है. So we have to discuss it in detail. Okay, so now there are different types of blood vessels in the body. There are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body, है ना. जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाना चाहिए, और ये कौन लेकर जाता है? ब्लड लेकर के जाता है, इजंट इट? सिमिलरली जब वो ऑक्सीजन यूज हो जाता है देन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, है ना. एनर्जी के साथ साथ क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. उसको भी हमारी बॉडी से क्या आना है? बाहर आना है. ऑक्सीजन को अंदर जाना था डिफरेंट पार्ट्स तक, और डिफरेंट पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड को पर्टिकुलर बाहर आना है. ओके, सो नाउ ये काम होता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ब्लड ही लेके जाता है, ब्लड ही लेके आता है. बट ब्लड कहाँ से लेकर के जाता है, कहाँ से किससे लेकर के जाता है, ये भी तो डिस्कस करना है. सो ये होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स, बिकॉज ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. सो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. दोज आर आर्टरीज एंड वेन्स. दोज आर आर्टरीज एंड वेन्स. सो वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टरीज. व्हाट आर आर्टरीज? Arteries are the blood vessels. Arteries are the blood vessels which carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body.
जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक्चुअली नॉट फ्रॉम द हार्ट, लंग्स से। हम लोगों ने एयर इनहेल किया तो कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से वो एयर जो है किसमें, हार्ट में, इजंट इट, हार्ट में जो ब्लड है वो कैप्चर कर लेगा, उसके साथ बाइंडिंग बनाएगा हीमोग्लोबिन, इजंट इट, और वो हार्ट से कहाँ पर जाएगा बेटा, आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा ऑक्सीजन। Okay, so this is the work of the arteries. Now we will discuss about the work of the veins. What are veins? Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. Okay, veins क्या होती हैं, वो blood vessels होती हैं जिनमें जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर के जाती है कहाँ तक, हार्ट तक। ओके, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस लेकर के कहाँ जाती हैं, हार्ट तक जाती हैं। ओके, सो दीज वर द आर्टरीज एंड द वेन्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैपिलरीज एंड हार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।